Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to cover workman compensation reserve and its treatment of chapter 3, that is change in profit sharing ratio of existing partner. In my last lecture, I have told you the treatment of reserve and accumulated profit, and in this lecture, continuing with that topic, I am completing the next topic of reserve and accumulated profit, that is workman compensation reserve. See, what is workman compensation? Treatment of workman compensation reserve. What is workman compensation reserve? Workman compensation reserve is a reserve created out of firm's profit to meet possible liability to pay compensation to employees if it arises. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है बेटा, ताकि जो पॉसिबल लॉस पॉसिबल लाइबिलिटी है जिसमें हमें एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन पे करना है हम उसको मीट कर सकें. इट मीन्स अ क्लेम मे और मे नॉट अराइज, और ज़रूरी नहीं है कि क्लेम अराइज हो, ये अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इट ऑल्सो मीन्स दैट क्लेम मे बी हायर दैन अमाउंट ऑफ रिजर्व, और क्लेम कैन अराइज और कैन नॉट बी अराइज, और क्लेम मे बी हायर दैन द अमाउंट ऑफ reserve. The treatment of workman compensation reserve represented by compensation payable to workers is an external liability, and the balance of amount left, if any, is an internal liability payable to the partner. जो ट्रीटमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और अगर कोई बैलेंस बचता है, इफ़ क्लेम इज़ मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देन इट इज़ द इंटरनल लाइबिलिटी एंड इट हैज़ टू बी पेड बाय द पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्रॉफिट. देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़ बेटा ट्रीटमेंट का. देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एज फॉलोज. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देयर आर 3 ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. नंबर 1, नो लाइबिलिटी against the reserve, when there is no liability against the reserve. Number 2, if there is liability against reserve. And number 3, partners decide not to close the account. So no liability against reserve. Number 2, if there is liability against reserve, it is of 3 types. Claim is lower than amount of reserve, claim is more than amount of reserve, and claim is equals to amount of reserve. ये 3 types की liabilities हैं. See accounting treatment of all these cases. Number 1, if no liability or claim exist against workman compensation reserve. जब कोई भी liability या claim exist नहीं कर रहा against workman compensation reserve, in such case entire amount of workman compensation reserve is transferred to old partners capital और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बेटा जब रिजर्व में अमाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट इज़ देयर बट नो क्लेम इज़ देयर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पूरी अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाती है और एंट्री हो जाती है इसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, और ये अमाउंट ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाती है अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. Being the amount of workman compensation reserve credited to old partners capital account in their old profit sharing ratio. Now see the next case beta. If claim for workman compensation exists, in such a situation treatment of workman compensation reserve depends on the amount of liability कि कितना claim आपका exist कर रहा है उसके ऊपर treatment depend करता है. 3 possibilities है बेटा इसकी. Number 1, इफ़ द क्लेम इज़ लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा होता है और क्लेम कम होता है तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम को एडजस्ट कर देते हैं और रिमेनिंग जो बचता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. The amount of estimated claim is transferred to provision for workman compensation claim account, and excess workman compensation reserve over workman compensation claim is credited to old partners in their old profit sharing ratio. ठीक है, जो अमाउंट ऑफ क्लेम है उसको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और जो एक्सेस रिजर्व होता है पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है इन द ओल्ड रेशियो. द जर्नल पास्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. ठीक है बेटा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से अमाउंट सबसे पहले प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट में जाएगी और जो एक्सेस रिजर्व होगा इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. सी नंबर 2, इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. जब क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल होता है तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड नो अमाउंट इज़ लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. तो एंट्री हो जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट बीइंग प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. तो इसमें कोई भी जैसे जो कोई भी अमाउंट नहीं रिमेन बचती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, टोटल अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में.
See now next claim, next treatment. If the claim is higher than the amount of workman compensation reserve, जब claim की amount ज़्यादा हो जाती है और workman compensation reserve कम होता है तो ये firm के लिए loss होता है. The amount of workman compensation reserve is transferred to provision for workman compensation claim account and shortage being a loss is debited to revolution account. See और entry हो जाती है इसकी workman compensation reserve account debit, workman compensation reserve account debit, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट. बेटा जब अगर अमाउंट ऑफ क्लेम ज़्यादा हो जाता है और रिजर्व कम है तो जो एक्सेस क्लेम है उसको हम रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और एंट्री हो जाती है इसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रेवोल्यूशन अकाउंट. और फिर सेकेंड एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट being the loss on revolution is transferred to capital or current account of old partners in their old ratio. ठीक है, तो दो एंट्रीज इसकी होगी. पहले हमने रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा और रेवोल्यूशन अकाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है उसका जो लॉस है. इन केस क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड और एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ लाइबिलिटी. इन दिस केस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट इज क्रेडिटेड इंस्टीड ऑफ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. इज इट क्लियर? जब उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लाइबिलिटी हो जाती है तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है. देन नेक्स्ट इज व्हेन पार्टनर डिसाइड नॉट टू क्लोज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ये जब पार्टनर डिसाइड करते हैं क्लोज करना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ पीछे मैंने एक्सप्लेन करी थी. और व्हेन पार्टनर डिसाइड नॉट टू क्लोज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो इन दिस केस द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर प्रोपोर्शनेटली ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. इट में और एंट्री हो जाएगी इसकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट. नाउ सी वन एग्जांपल बेटा. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Decide to take D as a partner for 1/5 share in the firm. With effect from 1st April 2018, on this day the workman compensation reserve showed a balance of rupees 90,000. Show the treatment in the following case. Case 1, if there is no other information. Case 2, if a claim on account of workman compensation is estimated at 45,000. Case 3, if claim on account of workman compensation is estimated at 99,000. Case 1 क्या है बेटा? when there is no claim. कब if a claim on account of workman compensation estimated 99,000 है. केस 3 है. केस 1 था when there is no claim. तो जब कोई क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन पार्टनर्स के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट अमाउंट जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी इन द ओल्ड रेशियो. एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. 40,000, 30,000, 20,000 being the transfer of workman compensation reserve to old partners capital account in their old profit sharing ratio. Case 2, when the claim is there, claim है आपका लेकिन claim reserve के अमाउंट से कम है तो उस केस में आपका जो क्लेम की अमाउंट कितनी दे रखी है आपकी केस 2 में. द अमाउंट ऑफ क्लेम इज सी द अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ 45,000. केस 3 में 99,000 है. तो जब आपकी अमाउंट ऑफ क्लेम जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड रेशियो में. और जब क्लेम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है बेटा तो उस केस में एंट्री इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000. 99,000 का क्लेम था बेटा. रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 99,000 बीइंग द प्रोविजन क्रिएटेड एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रेवोल्यूशन अकाउंट. और सेकेंड एंट्री A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट 9,000 ट्रांसफर हो जाएगा. तो बेटा अगर क्लेम कम होता है तो रिजर्व के अमाउंट से एडजस्ट होता है और जब क्लेम ज़्यादा होता है तो उसको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट के बाद उसको रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं फिर वो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाता है. इसके अकॉर्डिंग इसका सेम न्यूमेरिकल है आपका एग्जाम्पल, उसको आप कर लीजिएगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा कॉपीज़ में. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.